Om Sri Chinmaya Sadgurave Namaha. Sloka number 464. न तो देहादि सत्यत्व बोधनाय विपश्चिताम् यतः श्रुतेरभिप्रायः परमार्थैकगोचरः. Together. न तो देहादि सत्यत्व बोधनाय विपश्चिताम् यतः श्रुतेरभिप्रायः परमार्थैकगोचरः. So the idea of prarabdha has been expounded by the Upanishads, not for proving the reality of the body and so on for the man of realization, but the Upanishads are without exception striving to point out the one supreme reality. Okay. Yesterday or in previous class, we discussed about it. Natu dehadi sattvatva bodhanaya vipaschita. So, then we have to take the previous sloka's last line. That samadhatum bahya drishtya prarabdham vadati sruti. Here also we are finding that Shruti Abhipraya. Clear? So what is that? Na Natu, but Vipassitam for the Jnani Deha Adi Sattvatva Bodhanaya Na. ज्ञानी की सत्वत्व बोध कर देह कितना सत्य है ये समझाने के लिए ये नहीं. ठीक है. सो ज्ञान के द्वारा अज्ञान की कर्म जिनका पूरा के पूरा नष्ट हो गया है, तो ये स्थूल जड़ शरीर कैसे रहेगा, यही क्वेश्चन था. तो भगवान शंकराचार्य जी बोल रहा है ये जड़ बुद्धि का सवाल है. ये लौकिक दृष्टि वाला लोग जो सिर्फ जगत में जगत ही देख सकते हैं, जगत को सत्य देखते हैं, उनको समझाने के लिए प्रारब्ध की बात किया है. ज्ञानी व्यक्ति का शरीर कितना सत्य है, जगत कितना सत्य है, ये नहीं. Actually, Bhagavan Shankaracharya ji is concluding his discussion and says that the perceiver of the plurality, they quote passage from Upanishad that sanction the Prarabdha theory to prove that even the man of realization has body consciousness and therefore there exists a world of matter other than Brahman.
Bhagwan Shankaracharya ji takes away the very plank from under the feet of the pluralist. He says that the Upanishads condensed or Upanishad condescend to recognize the play of Prarabdha only out of their infinite grace to accommodate fools in their early stages of unpreparedness, that they may later accept the total vision of the Absolute. The Acharya says that any student of the Upanishads can easily understand that by and large, the anxiety of the scriptures is to communicate to him to one reality, the Brahman. Asangoham, asangoham, asangoham punah punaha सच्चिदानन्दरूपोऽहम् अहमेवावद्ययः or अव्ययः. Mandukya Karika 2.32. This is the analysis of Gaudapada ji, that this is the universal truth. Now follows a team of 7 verses, all of them repeatedly declaring the nature of the Atma to be the one, immutable, undecaying, infinite, eternal substratum for the universe. Bhagavan Shankaracharya ji, when he talks of the Supreme Reality, forgets the audience he is addressing and gets irresistibly carried forward by the impulsive joy of the infinite. He waxes eloquent upon the nature of the self, that he himself is living vitally in his own. See, in last class, there was a question. How the question came? Now, after celebrating the 85th birthday of our birthday girl, when some devotees returning back home, they stopped over here to visit me as I am bedridden. So people come sometimes to visit me and asked me that, Swamiji, I have a question for today's class. What is the question? I could not understand it. Okay. So, what I replied them, I can't remember right now, but they were satisfied. I will try to reply again to make you understand about the question, that it is true that when that karma phal will go, result of action, then where that sharira will go? Because
This very body is nothing but the result of our own karma. ये शरीर हमारे कर्म फल के सिवा और कुछ नहीं। तो बोल रहा है कि ज्ञान होने के बाद कर्म फल पूरा के पूरा चला जाता है, तो ये शरीर कहाँ जाए? शरीर भी नहीं रहे। लेकिन शरीर नहीं रहता किसके दृष्टि से? किसके दृष्टि में? न ज्ञानी के दृष्टि में शरीर नहीं रहता, अज्ञानी के दृष्टि में शरीर रहता है। शरीर रहता है, शरीर का प्रॉब्लम रहता है, घुटने का प्रॉब्लम रहता है, बीमारी होता है, बुखार होता है। लेकिन ज्ञानी के दृष्टि में शरीर नहीं है। जला हुआ रस्सी जो व्यक्ति जला के रख कर दिया है उसी जगह पर, उनको पता है कि ये रस्सी नहीं। लेकिन परमार्थ दृष्टि में ये काला रंग की रस्सी है। भुना हुआ मूंगफली देखने में तो मूंगफली जैसे ही है, या तो बॉयल किया हुआ मूंगफली, उबाला हुआ मूंगफली, लेकिन उसमें से अंकुरद्गम नहीं होता। अज्ञानी के लिए वो ऐसे है जैसे अंकुर हो सकता है। लेकिन जिन्होंने खुद ये प्रोसेस किया उनके लिए नहीं। स्टैंड पॉइंट होता है। किसी का मौसी का शादी हो, तो किसी के दृष्टि में उस मौसी का हस्बैंड मोसा हुआ, लेकिन मोसा की मां की नजर में बेटा ही रह गया। तो सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ समथिंग एल्स वी सी, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जगत वी सी द बॉडी, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नॉलेज when the whole world get discarded, ये शरीर कहाँ रहेगा? ना तो ये शरीर है, ना तो इनका प्रारब्ध है। आप महापुरुषों का देखिए, किसी का कैंसर हुआ है, किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, बोले महात्मा जी ये मेरा प्रॉब्लम नहीं, ये शरीर का प्रॉब्लम। शरीर कहाँ? मैं तो अशरीरी हूँ। दिस इज द इम्पैक्ट। सी इसमें ये ध्यान करने का वस्तु, सवाल उठाने का नहीं। Unless and until you meditate upon that, samadhan will not come to you. Let's start one new thing. That there is no plurality. Paripurnamanaadyantam aprameyavikriyam ekamevadvayam brahma
नेह नानास्ति किंचन. We will repeat again. परिपूर्णमनद्यन्तम् अप्रमेयम् अविक्रियम् एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन. जो व्यक्ति इसमें दाग लगाते हैं, लिख सकते हैं जो अंतिम लाइन है, एकम एव अद्वयम. ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है. और नेह नानास्ति किंचन, ये बृहदारण्यक उपनिषद में है और कठोपनिषद. आप लोग नंबर ढूंढिए. ओनली ब्राह्मण इज देयर which is non-dual, with no beginning or end, incomparable and changeless. In Brahman, there is no duality whatsoever. परिपूर्णम. ब्रह्मन पूरा के पूरा पूर्णम. जहां पर थोड़ा सा भी किसी चीज का अभाव नहीं है, अनादि है, जिनका शुरुआत कब हुआ किसी को पता नहीं, अनंतम, जिनका अंत भी नहीं. तुम्हें अनादि अनंत पुरुष प्रशांत. अनादि अनंत पुरुष प्रशांत. अप्रमेयम. अप्रमेयम मतलब जिनको जो प्रमेय नहीं, जिनको आप नाप नहीं सकता, असीम है, सीमाहीन है. अविक्रियम, जिनका विकार नहीं. विकार नहीं मतलब जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्ष्यते, विनश्यति. ये जो षड विकार है, पैदाइश होता है, अस्ति, बढ़ता है, विपरिणमते, कार उल्टा डायरेक्शन में जाता है, अपक्ष्यते, डिकेइंग है, क्षय होता है, उसके बाद विनाश हो जाता है. ऐसे जो विकार सारे जगत में है, ब्रह्मन में कोई विकार नहीं. अविक्रिय. एकम एव अद्वयम ब्रह्म. ओनली वन. ये एव शब्द क्यों व्यवहार किया है? क्योंकि आप एक स्वीकार करें तो आपको दो भी स्वीकार करना पड़ेगा. अगर आप एकम एव लगा दिया तो उसके बाद दो नहीं है. और ये अद्वितीय है. यह नाना किंचन न अस्ति. यह मीन्स इन दिस ब्रह्मन. नाना मीन्स बहुत्व, विभिन्नता, प्लूरलिटी. किंचन नास्ति. Not an iota of the plurality, it is there. ये क्यों बोल रहा है? न जिनका आत्मज्ञान हो गया है,
उनका अवस्था कैसे होता है, उनका मन की अवस्था। मैं तो जान लिया अयम आत्मा ब्रह्म, लेकिन ये ब्राह्मण कैसे है? न परिपूर्ण, अनादि, अनंतम, अप्रमेयम, अविक्रियम। हर विशेषण अ से शुरू हो रहा। अनादि, अनंतम, अप्रमेयम, अविक्रियम। अ के मतलब नेतिवाचक, किसी चीज को काटने के लिए। अ, असभ्य, जो सभ्य नहीं। अविवेकी, जो विवेकी नहीं। अविचार, जहां पर विचार नहीं। ये अ नेतिवाचक है। ये ब्राह्मण क्या, ये तो बोलना संभव नहीं। लेकिन वो क्या नहीं है, ये तो बोलना संभव है। और ये बोल के थोड़ा सा धारणा देने की कोशिश कर रहे हैं आचार्य, कि उन्होंने अनादि है, अनंतम है। आदि नहीं, अंत नहीं। परिमाप नहीं कर सकते आप। अप्रमेय, असीम है। आत्मा को आकाश के साथ तुलना करते हैं, क्योंकि आत्मा ही तो वस्तु है, बाकी सब अध्यास है उनमें। अगर आत्मा को हटा दो तो बाकी कुछ नहीं। इसके बाद बोल रहा है अविक्रियम, कोई विकार नहीं, मतलब कोई परिवर्तन नहीं। हर वक्त एक जैसे। समुंदर जैसे। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम। भगवत गीता, सेकेंड चैप्टर। ये सारे नदी, जैसे तीस्ता भी हुआ है सिक्किम में, कितना विक्षुब्ध होकर समुंदर में गिरते हैं। जैसे आश्रम में आकर कितना लोग कितना गुस्सा उतारते हैं, स्वामी जी आपको पता है वो क्या बताया है। और इधर आके, मतलब जो संत रहता है वो अभिकारी रहता है। अच्छा, बैठो, चॉकलेट लो, शांत हो, बैठ जाओ। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठा। कितना लोग कितना कुछ बोलते हैं, ये इनके बारे में ये बताया है, वो नहीं चलेगा, मैं और नहीं कर पाऊंगा, वो क्यों कर रहा है, मुझे इंसल्टिंग हुआ है। ठीक, आपको पता है वो आपके बारे में भी बोल रहा है। ठीक है, बैठ, चॉकलेट लो, और एक चॉकलेट लो, शांत हो जाओ। समुंदर के अंदर कोई विकार नहीं। वो ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा। एकम एव अद्वयम ब्रह्म। ये एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, इनके साथ किसी का तुलना भी नहीं होगा, यही ब्राह्मण है। किसको हम लोग ब्राह्मण बोल रहा है? ब्रह्म का अर्थ क्या है? बृहत्तमत्वात् इति ब्रह्म।
जो सबसे बड़ा है वही ब्रह्म। बृहत्तम क्यों? ना सर्वव्यापी है। लेकिन हम लोग ऐसे करके ब्राह्मण बोलते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये सब ऐसे करके बोल देते हैं कि जैसे ब्रह्म कुछ अलग वस्तु है जगत से। मैं वो ब्राह्मण, आप वो ब्राह्मण, आप सब लोग जो 20-22 लोग सुन रहे हैं, सारे के सारे ब्राह्मण। जो लोग नहीं सुन रहे हैं, अभी बाद में सुनेंगे, वो भी ब्राह्मण। जो लोग नहीं सुन रहा है, वो भी ब्राह्मण। हम ब्रह्मास्मि मतलब दिवाकर चैतन्य श्री ब्राह्मण है, ये ऐसे नहीं। एक्स भी ब्राह्मण है, वाई भी ब्राह्मण है, जेड भी ब्राह्मण। सब लोग परिपूर्ण है। आप सब लोग मुक्त है, परिपूर्ण हो। आप सब अनादि हो, अनंत हो, अविक्रियम हो, अप्रमेयम, एकम एव अद्वयम ब्राह्मण हो। सारे के सारे द्वंद्व छोड़कर सिंह की तरह गरज कर बोलो, मैं ब्राह्मण हूं। देखो सारे बीमारी चला जाए। क्या मानसिक बीमारी? ये वो बोला है, वो मेरा सब ले लिया है। अरे लाया क्या तू कि ले लेगा? आनंद में रहो। हर वक्त कॉम्प्लेन 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 इन लाइफ। बी हैप्पी। वी आर ऑलवेज ब्रह्म। एक ही इंफिनिटी है सबके अंदर। न यह नाना अस्ति किंचन, यही नेह नाना अस्ति किंचन, न यह नाना अस्ति किंचन। ब्रह्मन में बहुत्व नहीं, इसे ही नेह नाना अस्ति किंचन बोलते हैं। इट इज चेंजलेस in as much as it never undergoes any modifications. Brahman is one without a second. Brahman is non-dual. To remove any lingering doubt that there may be an exception, the most powerful word, किंचन। क्लास के बाद कोई सवाल उठा सकता है, स्वामी जी, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि वो एक्सेप्शनल और उनका प्रॉब्लम कोई नहीं समझता। Whenever we get someone else, किसी को थोड़ा अपना समझकर थोड़ा बात बोलते हैं, बोलना चालू करे, तो ये पहले ये शब्द आएगा, मुझे कोई समझते नहीं स्वामी, विश्वास कीजिए। আমাকে কেউ বোঝে না। আমার যে কষ্ট, আমি যে কি বলতে চাই, বিশ্বাস করুন, সবাই একটা উল্টো ভাবে আমাকে, हर व्यक्ति हमें सब उल्टा समझ। मैं ऐसा, so always the sense of exceptionalism works in me, always. So from that standpoint, उनको लगता है कि सब ब्राह्मण है, but not I am, because I am the exceptional one.
तो उनको हटाने के लिए नेह नानास्ति किंचन. It has the full force of the English word whatsoever. जितना भी एक्सेप्शनल आप हो, नेह नानास्ति किंचन. हरि ही ओम.